morning to one and all. Thank you for joining. My name is Antima Chauhan and I am the student counselor of primary wing in MGN Public School. So many of you are familiar with me as I have taken sessions, but for many of you I am a new face. So my role would be dealing with the behavioral issues or any kind of emotional issue if your child is facing. और आपका वो इशू जो है वो अगर आपको लगता है कि डेली लाइफ में डेली रूटीन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपके बच्चे के लिए और आपके लिए, सो माई रोल वुड बी डीलिंग विद दैट इशू. And other than that, I have dealt with many behavioral and emotional issues in the last 2 years. So if you feel if there is anything which is bothering you, you can contact me. My meeting hours would be on every Wednesday. Every Wednesday I'll be in pre-primary wing and parents can come and meet me जब आप morning आते हो छोड़ने के लिए, नहीं तो जब when you come to pick up your child तो I'll be there. आप कोई भी अपना concern, कोई भी अपना issue you can share with me and I'll be dealing with that. And when अगर मुझे किसी को बुलाना होगा parent को तो I'll be giving a specific appointment और यू हैव टू कम इन दैट मीटिंग आवर्स ओनली, जो मैं आपको अपॉइंटमेंट दूंगी ड्यूरिंग माई वीक डेज अदर देन वेंसडे. सो प्लीज़ डोंट फील अप्रीहेंसिव इफ़ आई कॉल यू. हम यूजुअली डर जाते हैं जब फ़ोन आता है कि काउंसलर का फ़ोन आया होगा, कुछ ना कुछ सीरियस हुआ होगा. सो कई बारी माइनर इश्यूज डिस्कस करने के लिए भी आई कैन कॉल यू. सो एकदम से हम घबरा जाते हैं कि कुछ सीरियस हुआ होगा तभी हमें कॉल आया. सो प्लीज़ डोंट फील अप्रीहेंसिव और come to meet me whenever you feel ki if there's any issue and any problem. So looking forward to help you all in every possible way. Thank you. Now I would like to invite Sangeeta ma'am. Ma'am would be guiding us on the parenting. Ma'am. Good morning Antima ma'am. Thank you. Good morning Sukha ma'am. Good morning, ma'am. Anku ma'am, and good morning every parent sitting there. So thank you so much. Although Saturday is an off day for kids, but because of this meeting, many of you must have got up early. शायद सोचा होगा कि Saturday आज थोड़ा सा आराम से उठ सकते हैं, but then again जब स्कूल से कॉल आ जाएगी तो शायद अपनी रूटीन टाइम से भी जल्दी अपने आप को सेट किया होगा. And I do understand कि आप में से बहुत सारे parents you may be joining from your workplace also. So again a great I know gratitude for that because it's not easy to manage lot of things. Trust me, 2 years had been very tough on all of us, right? Students were not able to come to school, parents everything got disoriented. But I think जो मुझे नजर आता है कि कोरोना का एक good thing is we have learned lot of new technology and this usage of Zoom has come through that. So we do understand कि पहले बहुत कुछ हमें parents meet जब हम in person school में करते थे इस तरह से. So we had to do lot of preparation side by side. Parking कहाँ होनी है, आपने अपना driving distance भी देखना है, timing उस हिसाब से 20 minutes और early, पहुंचने में 20 minutes, कोई छुट्टी ले रहा है, कोई जल्दी breakfast बना के आ रहा है, right? से कितनों को सीट आगे मिल गई, कितनों को नहीं मिली. So there were a lot of challenges. So I think today I understand there is nothing which can replace a human connection, but yes, the only thing that this technology has taught us, this time period has taught us that technology can get us connected anywhere, anytime. तो अगर हम किसी भी चीज का एक पॉजिटिव साइड देखकर चलेंगे आगे तो हर चीज में से कुछ सीखना है. So first of all, my congratulations to each one of you, especially to the nursery parents. Those children have just started into their schooling. It's a new beginning, a new journey for them. So special congratulations to all the parents of nursery class. Right, because it's a now a new start. एक disciplined lifestyle में बच्चा अब ढलना शुरू हुआ. My special welcome to all the parents who have joined us in this session. वो बड़ा अच्छा लगता है कि जब MGN की लिस्ट निकलती है, I think I know जब एक उसमें नाम बच्चे का नजर आता है जो हमने टारगेट किया था कि okay we want this child to be in this school and finally you get into that school क्योंकि आपने सब कुछ टाइम पे प्लान किया. Right, because you trusted the abilities of your child and yes the child got admitted with us. तो उस टाइम ये तो बहुत अच्छा लगता है कि गुड अब ये अच्छे स्कूल में आ गया, अब इसकी एक लर्निंग शुरू हो जाएगी. But trust me, once you will start in your journey in MGN,
यू विल फाइंड कि हम लोग बच्चों को जो सिखाते हैं वो हमारा एरिया है, बट हम पेरेंट्स को सीखने से रोकते नहीं हैं. वी मेक यू लर्न साइड बाय साइड, एंड समटाइम्स इस तरह की मीटिंग में समटाइम्स इट्स अ फोर्स्ड कॉलिंग टू यू कि आज बच्चों की छुट्टी है बट आज आपकी क्लास है, राइट? सो दिस इज अ जर्नी ऑफ बीइंग अ पेरेंट. माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि आप लोगों की ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, आई एम श्योर माय टीचर्स हैव ऑलरेडी इंटरैक्टेड विद यू, दे आर मेकिंग यू फेमिलियर कि आपने कैसे पेंसिल पकड़ानी है, क्या नोटबुक होना चाहिए, क्या टाइम टेबल फॉलो करना है. दे आर ऑलरेडी टेलिंग यू ऑल दिस. So I think with this beautiful group of parents, almost 300 parents with us, I'll touch on those issues little less. Lekin something which is very close to my heart, to my school's heart, to Sukha ma'am's heart, and to each one of us is parenting. Right? Parent ban jana sirf aur sirf, right? बच्चे को पैदा करना और स्कूल में भेज देना, यहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती है, यहाँ से तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होगी. So अब कुछ देर के लिए approximately 40 minutes or so, we'll try and learn few more things which I feel, which we all feel must be, a parent must be aware of. So in a while, I'll be sharing my screen with you, and Anku ma'am, just let me know once it is visible to everyone. So we extend once again a very warm welcome to all of you to this beautiful family which we call as MGN. और जब हम फैमिली कहते हैं तो वहां पर हमारा रोल इक्वल हो जाता है. सो दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड वर्क एज वी प्रोसीड एज पेरेंट इन आवर दिस इंस्टीट्यूशन, राइट? नहीं आ रहा, राइट? तो इट्स अ न्यू बिगिनिंग नॉट ओनली फॉर द चाइल्ड, बट हम सभी के लिए एक नया स्टार्ट है. न्यू स्टार्ट ऑफ सेंडिंग आवर चाइल्ड टू द स्कूल, न्यू स्टार्ट ऑफ ज्वाइनिंग अ न्यू स्कूल, न्यू स्टार्ट आफ्टर कोरोना, कोविड के टाइम पर जब बच्चे घर रहे, न्यू स्टार्ट ऑफ एवरी न्यू थिंग. क्या कैसे पकड़ना है, चलना है, कैसे लर्न करना है, इट्स अ न्यू बिगिनिंग. सो दिस न्यू सेशन ब्रिंग्स लॉट ऑफ न्यू थिंग्स. बट अब हम कुछ चैट बॉक्स पे बात करने की कोशिश करेंगे. हम में से कितनों को लगता है कि आजकल के टाइम में जो पेरेंटिंग है वो थोड़ी मुश्किल होती जा रही है? इट्स गेटिंग टफर एंड कॉम्प्लेक्स. बड़ा मुश्किल है आजकल के बच्चों को संभालना. अगर मैं ये क्वेश्चन अपने टीचर्स को डालूंगा, आप चैट बॉक्स में यस या वाई या एन लिख सकते हैं. वाई इफ यू से यस, एन इफ यू से नो, राइट? सो यू कैन राइट इन योर चैट बॉक्स. अगर मैं ये क्वेश्चन अपने टीचर से बोलूंगी ना, मुझे पता है मेरे पास सब वाई आने वाले. यस मैम, इट्स गेटिंग टफर एंड टफर, right? I know that. I know my prompt answer. And here the chat box is all full. Yeah, I'm getting all why. Thank you everyone. Thank you. तो अगर आपको लगता है कि हमारी ये टाइम्स जो हैं थोड़े चैलेंजिंग होते चले जा रहे हैं, then this meeting is for you. Then you have to stay here for another 35-40 minutes. तब आपका यहाँ रुकना और ज्यादा जरूरी हो जाता है. I am now going to share few questions with you. Let us see हम में से कितने पेरेंट्स इन क्वेश्चन से जूझ रहे हैं. It's the same issue. My child often throws tantrums before coming to school. हमें से मुझे लगता है बहुत सारे पेरेंट्स को ये बड़ी मुश्किल आ रही है आजकल. सुबह उठते ही मैम रोना शुरू हो जाता है, मुझे पकड़ना. काफी बच्चे, I'm not saying for every child because every child is different from another. बट कहीं ना कहीं पकड़ रहा है, मैम रो रहा है, रोज ही मैम बहाने बनाना शुरू कर जाता है, राइट? बहुत रो रहा है आजकल, जो पहले नहीं रोता था, क्योंकि ये जैसे हमसे अलग होता है, he or she starts crying. My child also seems unable to focus. अब आपके टीचर्स ने अब आपको काम कराना शुरू करा दिया, राइट? सो बहुत सारे पेरेंट्स शायद इस क्वेश्चन में भी जूझ रहे होंगे, राइट? कि बैठता ही नहीं है मैम बच्चा, मैम 2 लाइन लिखता है फिर उठ के बच जाता है. So I'm sure आप में से at least with 300 plus parents 150 must be going through this कि मैम बैठता ही नहीं है, इसको एक जगह पे बिठाना कैसे. बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है. My child is always asking for something. ये सारी चीजें एक ही बच्चे में नहीं होगी, बट इनमें से कोई क्वेश्चन किसी का होगा और कोई क्वेश्चन किसी का, राइट? My child always wants something, more toys, more fun, more of anything, but is seldom satisfied. कभी भी खुश नहीं होता. मैम कुछ भी लाकर दे दो, थोड़ी देर में कुछ और की चीज की डिमांड आ जाती है. टीवी, मोबाइल्स, ये पकड़ा दो, बहुत देर के लिए वो काम चलता चला जाता है. Somebody is touching on the screen, kindly avoid on that, right? My child watches TV constantly.
राइट, माई चाइल्ड वॉन्ट्स माई अटेंशन ऑल द टाइम, राइट, हमेशा वो कहता है मम्मा मेरी बात सुनो, मैम मेरे घर में छोटा बच्चा है, मेरे काम भी होते हैं, बट स्टिल यू नो यू फेसिंग दोज इश्यूज. माई चाइल्ड इज नॉट गुड एट मेकिंग फ्रेंड्स, थोड़ा शाय है. आप में से बहुत सारे बच्चों पेरेंट्स ने टीचर्स को अप्रोच किया, राइट, कि मेरा थोड़ा सा बच्चा ना मैम ये जल्दी मिक्सअप नहीं होता, ਇਹਦਾ प्लीज थोड़ा ख्याल रखियो, इनू सो एंड सो बच्चे दे नाल बिठा दियो, राइट. यू हैड बीन अप्रोचिंग, आप एक कंफर्ट जोन में बच्चे को डालने की कोशिश में, क्योंकि मेरा बच्चा शाय है तो मैं ये चीजें स्कूल से एक्सपेक्ट करती हूँ. कईयों को लगता है कि मेरा बच्चे में अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो देख सामने वाला कितने अच्छे से चल के आ रहा है, तू मेरे को पकड़ पकड़ के मेरी चुन्नी के पीछे छुपी जा रहा है, राइट. तो दे फील माई चाइल्ड इज लैकिंग some kind of confidence which needs some kind of an improvement somewhere. Right. And if he doesn't study well, you can do it. That's okay. You can come and play. अब अगर इनमें से कुछ questions आपको लगता है कि even if 50% of this is happening in your case, 3, 4, 5 questions से भी अगर आप struggle कर रहे हो, even then this meeting you need to be here. That means as a parent we are going through. घर में बैठे अपने हस्बैंड के साथ या मम्मा पापा के साथ किसी के साथ सिर्फ बात करने से सोल्यूशन नहीं निकलेगा. जितने मैंने आपके सामने क्वेश्चंस रखे उनमें से अगर 1 या 2 या 3 या 5 क्वेश्चंस में आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो दैट मीन्स वी नीड टू रियली वर्क फर्दर ऑन दिस, राइट. सो टुगेदर ओनली विल गो ऑन दिस जर्नी. मैं करूं इसको नेक्स्ट. इसमें मेरा एनोटेशंस बंद हो गए बेटा. So what we need to do is, right, we need to work on that. We as parents need to stop parenting. पहली चीज जो हमें करनी है, we need to stop being parent. अब आप अपने दिमाग में एनालाइज करिए कि जब हम पेरेंटिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं. जब हम पेरेंटिंग करते हैं तो हमारा दिमाग में ये होता है हम इनसे सुपीरियर हैं. We are the controller, right? We know what is best for them. Right? We know, whatever we are saying, my child must listen to me. So, dear parents, the times have to be changed. The way we were raised, if we raise our children in the same manner, the change will never come. So now we have to stop parenting. But करना क्या है मैम, अगर parenting छोड़ देंगे तो स्कूल कौन भेजेगा, right? So we have to start partnering. We have to become partner with our child. Right? You have to come to their level, understand what they are passing through. You have to become partner with the school. Understand that हमारा और आपका common objective है. हम में से कोई भी आपके बच्चे के साथ में कोई personal grudge के साथ कभी नहीं चलेगा, क्योंकि objective common है. Right? We all want child to be a comfortable being in this world. So we both have to become partners, the school and the parent. Both ends have to become partners, the parents and the child. So lot of partnering is required. और जब हम पार्टनर बन जाते हैं तो उसमें ब्लेम गेम खत्म हो जाती है, उसमें हम सब इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आ जाते हैं, राइट. व्हेन यू बिकम पार्टनर्स देन इट्स एन इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी. बच्चे में कुछ गलत हो रहा है तो स्कूल की भी इशू हो सकता है और पेरेंट की तरफ से भी कोई इशू हो सकता है. तो वी हैव टू बिकम इक्वल विद देम. अगर बच्चा कुछ लर्न नहीं कर पा रहा, वो अगर एक जगह बैठ के फोकस नहीं कर पा रहा, अगर वो बहुत ज्यादा टीवी में टाइम निकाल रहा है, we have to understand if the child is not following all those things, then there could be a flaw in me as a parent. Then you become partner. Partner का मतलब होता है partner in everything, equal responsibility in everything. हम life partner कहते हैं अपने better half को. Why? Because life में होने वाली हर चीज में हम दोनों बराबर के जिम्मेवार होंगे, right? Blame game हमें end करना होगा. We have to work on working together with each other. So with your child, learn to be, partner. With the school, become our partner. So this is very important for us to understand because अभी आप लोग बहुत fresh, new, young parents हैं, right? बहुत सारे parents हैं जिनके बच्चे primary से ऊपर शायद अभी किसी क्लास में नहीं होंगे. So I expect कि almost all of you are very young parents. So when you are there, you already know कि 2 लोग एक बच्चे की जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, फैमिली एंड स्कूल. एंड फैमिली में भी मैं कहूंगी पेरेंट्स एंड टीचर. सो ये दोनों हैं, लेकिन एक फैमिली का रोल पहले है, पेरेंट का रोल पहले. द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन वेयर, क्यों हम पेरेंटिंग पे बात कर रहे हैं, बिकॉज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन वेयर अ चाइल्ड लर्न्स इज द फैमिली.
The first teacher of the child is the parent. I will not even say mother is the first teacher. No, it can be either of the parent. The first teacher is the parent. जो बच्चा, हम तो 12 साल 15 साल बच्चे को यहाँ से पढ़ा के we almost lose our contact with the child. But एक parent तो शायद जीता ही अपने बच्चे के लिए है ना. I'm right on that, I'm sure. Right? So you have to understand that we too play a very important role, but the role of parent comes first. तो टीचर ने अपने आप को जितना पॉलिश करना है वो हम करवाएंगे, वो हमारी जिम्मेवारी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मेरा जॉब प्रोफाइल भी है. बट एज अ पेरेंट मुझे हर रोज सीखना है. आज के दिन में जब आप मेरी भी इंटरेक्शन सुने, ये मत सोचें कि देयर इज समबडी फ्रॉम द स्कूल एंड टॉकिंग टू यू. थिंक समबडी हु इज जस्ट टॉकिंग टू यू बिकॉज वी वांट दिस प्लेस टू बी अ हैप्पी प्लेस फॉर आवर चाइल्ड. So that is what we are looking up for. So it requires your parent as your intervention. आपको interfere करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा अपने parenting styles के ऊपर, right? So you have to learn certain tips and tricks to become efficient parent, right? So that these kids are reared up, you know, in a very beautiful manner. So let us see कि वो क्या areas हैं जो हमें mindful parenting की तरफ लेके जाते हैं. Now I would again want you to understand. जब मैं कहूंगी माइंडफुल पेरेंटिंग, इसका मतलब है पेरेंटिंग इज नॉट समथिंग कि एक बच्चा जिसको हमने कंसीव किया, 9 महीने पेट में रखा और वो पैदा हुआ और उसने मुझे माँ कहा और मैं माँ बन गई, उसने मुझे पापा कहा और मैं फादर हो गया और अब हम मिलके दोनों इकट्ठे पेरेंट हो गए. इट्स नॉट ओनली दिस, इट इज माइंडफुली वर्किंग. मतलब आपको कॉन्शियसली अपने ऑल बिहेवियर्स के ऊपर चेक करना पड़ेगा. कॉन्शियसली आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा कि जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ, क्या वो मेरे बच्चे के लिए सही है. और पेरेंटिंग में मम्मी और पापा दोनों का रोल होगा. ये आप अभी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी से ही समझ के चलिए. हमारी सोसाइटी में ये बहुत बड़ा फ्लॉ है कि बच्चे के साथ नाम हम फादर का लगाते हैं, जिम्मेवारी हम सारी मम्मी के सिर पे डाल देते हैं. वेदर यू आर अ वर्किंग मदर और नॉट, ये कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैम हस्बैंड जॉब में होते हैं और हम यू नो हाउसवाइफ हैं. यू आर नॉट हाउसवाइफ, यू आर अ होम मेकर, यू आर अ पेरेंट एंड पेरेंट इज मम्मी पापा बोथ. तो आपकी अगर जिम्मेवारी है तो पापा की भी उतनी ही इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. क्यों जरूरी है, वी विल कम टू दिस. तो इसीलिए आपको माइंडफुली अब काम करना है कि जब मैं पेरेंटिंग की, जब मैं कहूँ पेरेंट मीट, तो क्या उसमें सिर्फ मम्मा को मिलना चाहिए? हमेशा हमेशा. कभी मजबूरी हो सकती है, कभी आप में आपको काम हो सकता है तो पापा आए, पापा को काम हो सकता है तो आप आए. तो उसमें क्या है, आप दोनों को सब कुछ सीखना पड़ेगा, दोनों को, राइट. सो दिस पहली माइंडफुलनेस ये है, कॉन्शियसली अपने ऊपर काम करना पड़ेगा. ऑटोमेटिकली द किड इज गोना वर्क. पहली कॉन्शियस लर्निंग, कोविड में सेपरेशन एंजाइटी इंक्रीज हो गई, राइट. ये आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा और इसके ऊपर कॉन्शियसली वर्क भी करना पड़ेगा. लेकिन मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि बच्चे स्कूल में आने से तभी रोते थे जब से कोविड शुरू हुआ है. नो, years and years. I think I have been in school since 20 years. Sukha ma'am sits here with the maximum experience, more than 25 years, right? So हमारा एक्सपीरियंस बताता है जब बच्चे स्कूल में आते हैं ये रोते हैं. कोविड के बाद आने से ये बढ़ गई है. अपने मम्मी पापा से दूर होना, घर के एनवायरनमेंट से बाहर निकल के आना, अब बच्चे ज्यादा रोने लगे, right? If I talk to you, almost till third to fourth, even my fourth class, up till fourth class, we are getting children. थोड़ी सी देर में पेट दर्द हो जाता है, बस टांग में बहुत दर्द है, मैम घर कॉल करवा दो मैम. सेपरेशन एंजाइटी है, राइट. वो आपसे अलग होते हैं और वो घबरा रहे हैं. एक मम्मी, एक पापा, दादी या दादू, नानी या नानू, मासी, बुआ, किसी ना किसी को 2 साल से वो अपने आसपास देख रहे थे जो सिर्फ उनको अटेंशन देता था. नाउ द चाइल्ड इज इनटू अ बिगर वर्ल्ड. ये नेचुरल है. अगर तो आप इसके साथ में इसी तरह से क्लिंग करके रहेंगे, चिपके रहेंगे, तो वो बच्चा इस एंजाइटी से कभी बाहर नहीं आएगा. सो कहीं ना कहीं आके हम दोनों को मिलकर ये एफर्ट डालना पड़ेगा, स्कूल को और पेरेंट को. जब वो रो रहा है उसको छोड़ना ही पड़ेगा. आप रोते हुए जाओ अपने घर, जाओ, कोई आप अलग पहले मम्मी पापा नहीं हो जिनको दुख होता है जब उनका बच्चा रोता है. हम भी इसी स्कूल में होने के बावजूद भी हमें पता होता था कि वहां बैठा हमारा बच्चा रो रहा है. वी वुड नेवर गो एंड इंटरवीन इन क्लासेस, राइट, बिकॉज वी न्यू कि अगर आज चले गए तो मेरा बच्चा कल के लिए तैयार नहीं होगा, राइट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट थिंग कॉन्शियसली
they are going to feel little anxious. कभी बहाना भी, हर सैटरडे संडे के बाद में मंडे को आना उनके लिए मुश्किल हो जाए, राइट? सो रीजन क्या रहते हैं, हमें ये भी देखना है कि इस टाइम पर हमारे पास कुछ एरियाज, राइट, बड़े मेजर कंसर्न के रहते हैं. हमें ये लग रहा है, सॉरी एक मिनट, जस्ट कुछ मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न वेयर आई नीड टू पुट अटेंशन इज, हम में से बहुत सारे पेरेंट्स कई बारी हम ये लेकर चलते हैं कि प्रोबेबली यू नो वी आरंट गिविंग टाइम टू, हम क्या कर रहे हैं कि जब हम रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स इनको हम संभाल नहीं पा रहे हैं, एंड वी आर ओवर फीडिंग देम, वी आर गिविंग देम मोर देन व्हाट दे रिक्वायर. एंड व्हाई वी आर गिविंग देम मोर देन रिक्वायर्ड? बिकॉज वी फील कि हम उनको टाइम नहीं दे पा रहे. बहुत सारे पेरेंट्स जो वर्किंग पेरेंट्स हैं, जब आप उनको टाइम नहीं दे पाते हो तो आप अपने सामान के साथ यू नो मटीरियलिस्टिक थिंग्स के साथ में उन चीजों को सब्सटीट्यूट करते हो, राइट? We have different ideas and wrong ideas about love and happiness. Actually, I think मेरा एक point इसमें miss हो रहा है, जो मैं why I'm putting up this, because जब आप बच्चों को बहुत सारी चीजें ज्यादा देते हो. My concern is, first point was separation anxiety and second is जब बच्चा जिद्दी हो रहा है. अगर आपको लगता है आपका बच्चा tantrums throw कर रहा है, बहुत ज्यादा demanding हो रहा है, बहुत ज्यादा pampered feel कर रहा है, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि आप, हमें लगता है एज द पेरेंट समटाइम्स मैं बहुत टाइम नहीं दे पा रही, चलो आज मैं जाते जाते उसके लिए चॉकलेट ले जाती हूँ. एज इफ चॉकलेट कैन सब्सटीट्यूट माई टाइम फॉर द चाइल्ड, राइट? मैं बाजार, आज मैं सुबह पहले अपनी जॉब में थी, देन आई हैड टू गो टू द मार्केट. मार्केट से आने के टाइम पर मैं 2-3-4 टॉयज एक्स्ट्रा ले आई, बिकॉज मुझे गिल्टी था कि आज सुबह से मैं निकली हुई और शाम को 7 बजे तक मैं अपने बच्चे को मिल नहीं सकी. सो हम क्या कर रहे हैं, अपने टाइम को कई बार इस चीज से सब्सटीट्यूट करते हैं. हमारे गलत आइडियाज है दैट इफ यू लव योर किड, you show more of your love through things which you show to give to the child. तो हमारा wrong idea of love and happiness है. कई बारी हमारे ऊपर peer pressure, अगर आपको दिखाई देता है कि आपके घर में ताया जी ने बच्चों को टैब ले दिया, या मामू के बच्चों के पास में आईफोन आ गया, या उनके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक बहुत बड़ा टॉय आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कार लेकर दे दी बच्चों को जो खेलने वाली होती है, राइट? You want to give the same to the child. हमें लगता है कि हमारे बच्चे ने अगर इतना सा कह दिया ना, मम्मा उसके पास ना एक पेंसिल बॉक्स है जो ना बड़ा सुंदर है, मुझे लगता है बिना जाने, बिना जरूरत को पहचाने, जो मम्मी पापा है ना, वो पूरा बाजार छान मारते हैं कि सेम वो चीज मेरे बच्चे के पास आ जानी चाहिए, मेरे बच्चे को ये ना लगे कि उसके पास कोई चीज की कमी रहे. हमारे ऊपर अपने ही पीयर ग्रुप में बराबर होने का बहुत बड़ा प्रेशर है, राइट? एक पेरेंट किसी अपने बच्चे को किसी हॉबी क्लास में डालता है तो हमें लगता है हमारा ना रह जाए टाइम कहीं, तो हम भी अपने बच्चे को लेकर चल पड़ते हैं, राइट? अनदर एरिया क्यों बच्चे टैंट्रम्स थ्रो करते हैं इज बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ कंसेंसस. अब आप समझेंगे जब मैंने आपको कहा कि मम्मी पापा का रोल बराबर है, आप दोनों के बीच में एक कंसेंसस होना चाहिए. अगर आपको लग रहा है कि बच्चे ने चॉकलेट्स ज्यादा खा ली हैं, उसको नहीं देनी है, तो पापा को भी ये चीज माननी है, दादी दादू को भी ये चीज माननी है, मामी मामू को भी ये चीज माननी है. नो मीन्स नो, राइट? ये बात बिल्कुल गलत है कि अगर मम्मी ने मना कर दिया और पापा बोले चल अपनी मम्मी ने पूछ किया बेटे मैं तो ले देना सी, फिर तेरे मम्मी डांटेंगे. मुझे भी डर लगता है, बड़े प्यार से कई बार पेरेंट फादर मजाक में कहते तेरी मम्मी से, तो तेरी मम्मी की डांट से तो मुझे भी डर लगता है. जेंट्स को शायद, मुझे लगता है मेल्स को ये चीज का मजा आता है कहने में, राइट? सो यहाँ पर जब पेरेंटिंग आती है तो आपको माइंडफुली देखना है, हर चीज पर आप दोनों का कंसेंसस होना चाहिए. अगर आपको लग रहा है कि आज मुझे अपने बच्चे को 20 मिनट्स एक्स्ट्रा पढ़ाना है, उसको बिठाना है, तो वो अगर रो रहा है, टैंट्रम्स तो कर रहा है, तो बीच में फिर फादर ना आए, बीच में दादी दादू भी ना आए, बीच में नानी नानू भी ना आए, जो भी कोई है घर में केयर टेकर बियॉन्ड यू बिसाइड यू, दे शुड नॉट इंटरफेयर, राइट? एक कंसेंसस चाहिए. नहीं तो बच्चा एक दूसरे को यूज करेगा, अभी से सीख जाएगा, तो उसको पता होगा कि ये चीज मैं मम्मी से नहीं मना पाऊंगा, आई हैव टू गो टू पापा. और ये बात में मम्मी पापा की नहीं चलनी, मैं सीधा ही दादी दादू को बोलूंगा, फिर आपके फैमिली कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएंगे, यहां से इश्यूज बढ़ते चले जाते हैं. सो आपको बैठना होगा, माइंडफुली इन चीजों पे काम करना होगा. कई बार हम इनको बहुत चीजें इसलिए भी देते हैं बिकॉज हमें लगता है कि जो चीजें हमारे को नहीं मिली, राइट, वो हमारे बच्चों को जरूर मिलनी चाहिए. A little click teachers takes us back, right? So
हमें लगता है अगर कुछ चीजें हमें नहीं मिली, डिप्राइव हम थे, तो हम अपने बच्चे को क्यों ना दें भाई, हमने सब कुछ इतनी मेहनत करी है, इन्हीं के लिए तो करी है. इज अ कॉमन थिंग दैट आई हियर फ्रॉम द पेरेंट्स, राइट. लैक ऑफ स्किल्स, हमारे अंदर वो स्किल्स ही नहीं है कि हम सीखें कि हमें इनके टैंट्रम्स को कैसे मैनेज करना, और ये जानना कि हम इनके टैंट्रम्स को मैनेज कर सकते हैं. उसके लिए आपको स्कूल के साथ में फिर पार्टनर बनना पड़ेगा. इस एज में ना पेरेंट्स को ये लगता है कि फिर क्या हो गया, बच्चों ने इतनी सी चीज तो मांगी है मैम, इक्को इकता बच्चा है मैम, 2-3 साल वेट करन तो बाद पहला बच्चा था होया, 10 साल वेट करके भी हुआ, क्या हम उसको बिगाड़ देंगे? वी कैन नॉट डू दैट, राइट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, कोई चीज अगर अफोर्डेबिलिटी पे मत जाइए, आप लेकर दे सकते हैं कि नहीं, ये मतलब नहीं है. मतलब क्या है, उसको वो चीज चाहिए है कि नहीं चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्योंकि देखिए छोटे है ना, इनकी डिमांड क्या होगी, पापा मुझे पिंक वाली नहीं, मुझे रेड पेंसिल चाहिए, मुझे ऐसा वाला बैग नहीं, मुझे डोरा वाला बैग चाहिए, मुझे ये बॉटल नहीं चाहिए, मुझे स्टील वाली बॉटल चाहिए. तो आपको लगता है कि ये चीजें अगर मैं दे सकता हूँ, क्या बात हो गई मैम, दो जिथे इन्ने फीस देने स्कूल नु 2-4 हज़ार की तो चीज मंगी बच्चे ने. इट विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, राइट. ये एंड नहीं होने वाला. अब उसको ये दिखा रहे हैं कि मैं तुम्हारी हर डिमांड को अफोर्ड कर सकता हूँ. फिर वो डिमांड बढ़ती है, फिर वो आईपैड्स पे आएंगी, फिर वो नोटपैड पे आएंगी, फिर वो आईफोन्स पे आएंगी, फिर वो डिमांडिंग ऑफ बाइक आएगा, फिर कार आएगी, फिर घर आएगा, फिर सेपरेट रहना आएगा. ये अनअवॉइडेबल हो जाता है. नींव यहीं से शुरू होती है, फाउंडेशन. दिस इज माइंडफुल पेरेंटिंग. आपको समझ के चलना है, उनको उतना देना है जितनी उनकी जरूरत है, वो नहीं देना जो आप दे सकते हैं. क्योंकि शायद एक पेरेंट के लिए 1,000 रुपया एक्स्ट्रा निकालना मुश्किल है, लेकिन दूसरे पेरेंट के लिए 1,000 रुपया 1 मिनट में बच्चे को पिक ड्रॉप करने के टाइम पे स्पेंड करना पॉसिबल है. अगेन आई वुड से माइंडफुली थिंक अबाउट योर पेरेंटिंग स्टाइल. इट्स नॉट अबाउट कि आप अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, इट्स अबाउट आपको वो चीज देनी चाहिए, बच्चे को उसकी जरूरत है कि नहीं. जब घर में 5 पेंसिल हैं तो क्या 6 की जरूरत है? जब आपने ऑलरेडी नया बैग लेकर दिया है तो क्या उसी टाइम पर नया बैग की और लेकर देने की जरूरत है, राइट. सो डोंट डू them parenting in the same manner as we were done, right. So you have to understand on these certain areas, and this becomes major concern. एक माइंडफुली इन चीजों को जो मैंने अभी आपसे पिछले पॉइंट सारे डिस्कस किए हैं, उनके ऊपर माइंडफुली काम करना है. तो टीच देम टू डिले देयर ग्रेटिफिकेशन. अपनी डिमांड्स को पोस्टपोन करना उनको सिखाइए, ये बहुत जरूरी है. आज जो चीज मांगी, बच्चा कहीं फोन पे कह देता है पापा से, पापा आज ना मैंने आइसक्रीम खानी है, एंड पापा इंश्योर्स कि कहीं से भी जाते हैं, मैं ना अभी आ जाता हूँ, पहले तुझे आइसक्रीम दे जाता हूँ. मम्मी कहती रह जाएंगी पीछे से, अभी जरूरत नहीं, शामी ले आई हो. ना जी, बच्चे ने जो हुनी किया है, वो स्कूलों आ रहे, तुसी बच्चे नु लेके पहुंचो, असी इधरों आइसक्रीम लेके पहुंचते हैं. दैट्स द काइंड ऑफ लव वी आर एक्सप्रेसिंग टू देम. टीच देम, हर चीज उसी टाइम पर डिमांड करने से नहीं मिलती है. You have to wait. You have to wait to delay your needs. आपको रुकना पड़ता है, अपनी टर्न के लिए भी रुकना पड़ता है, राइट. स्कूल में हर टाइम पर हर टीचर आपको आगे नहीं बिठाएगी, बेटा आपको रुकना पड़ता है. हर टाइम मैम आपकी हर बात को नहीं सुन पाएंगी, आपको बेटा रुकना पड़ेगा. आज आप मुझे जैसे ही कहीं बोलोगे कि यहाँ लेकर चल पड़ो, उसी टाइम पर नहीं लेके जा सकते हैं बेटा. हमें अपनी चीजों को प्लान करना पड़ता है, राइट. तो आज ही मुझे नया फोन चाहिए, नया फोन अभी नहीं मिल सकता है. वी हैव टू वेट. कब तक वेट करना है? जो चीज आपको टाइम बाउंड है उसके लिए बता दो. जो चीज आपको लगता है कि मैं अभी, मुझे पता ही नहीं है कि मुझे कब तक रुकना है, तो उसको पोस्टपोन करो. उसको बोलो जब टाइम आएगा वी विल सिट बैक टू रिकंसिडर. यहां से टैंट्रम्स शुरू हों. अब आप सिर्फ ये 2-3 स्लाइड्स में से भी अगर आप सोच के चलेंगे ना, यू विल कम टू नो कि आर वी रियली डूइंग राइट पेरेंटिंग. क्या आपका और आपके हस्बैंड का कंसेंसस है? क्या आप अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा चीजें दे रहे हैं? क्या उनकी इमीडिएट डिमांड पे आप इमीडिएटली उनको चीज देते हैं? या फिर जब आप घर पे नहीं हो पाते हैं तो क्या आप चीजों के साथ में उस बच्चे को अपने टाइम को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर इनमें से कुछ भी चीजों का क्वेश्चन आपके आंसर आपके सामने यस हो रहा है, तो यू हैव टू डू माइंडफुल पेरेंटिंग. दिस इज मस्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज अर्जेंट. It has to be dealt up very, very cautiously. A child is like your stomach. It does not need all that you can afford.
पेट बहुत कुछ ले सकता है ना, आपने देखा कई बारी लोग वो ट्यूब्स भी खा रहे हैं, कीलें भी खा खा के दिखाते हैं, आयरन, बड़ा कुछ दिखाते हैं, बट इज दैट मेंट फॉर स्टमक? नो, वी नो इट कि स्टमक का एक लिमिट है, उसी तरह से आपके बच्चे की भी एक लिमिट है. इट्स नॉट दैट व्हाट यू कैन गिव टू योर चाइल्ड, इट्स व्हाट योर चाइल्ड एक्चुअली नीड्स शुड बी गिवन टू द चाइल्ड. एक इशू हमारे सामने कोविड टाइम में थोड़ा सा ज्यादा हो गया, राइट, जिसको हम कहते हैं डिजिटलाइजेशन, उसके कारण स्क्रीन टाइम का बढ़ना, राइट. आपको लगता है कि ये एक इशू बन गया आपके बच्चे के साथ भी? क्या स्क्रीन टाइम आपका बढ़ रहा है, आपके बच्चे का? मतलब आर दे मोर ऑन टू लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स और टीवी वॉचिंग? आर दे स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन दिस? वाई और एन लिखिए जरा चैट बॉक्स, मुझे वो बढ़ता हुआ चैट बॉक्स देखने दीजिए. yes or no, y or n? I'm sure chat box is activated, है ना? yes 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 yes. और एक mindful, thank you thank you thank you, I can see it just over flooded with yes, right. mindfully सोचिए, क्या ये स्क्रीन टाइम सिर्फ बच्चे का बढ़ा है? हमारा भी बढ़ा है, लेकिन एज अ पेरेंट लेट्स डू अ लिटिल ऑफ नॉकिंग हियर. अंडरस्टैंड क्या ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए सही है और इसके ऊपर हमें कुछ और काम करना है. वी नीड टू पॉन्डर ऑन दिस, राइट. कुछ चीजें आपको समझ के चलनी पड़ेंगी. 3D गेम्स, 3D games are very harmful for your child, right? You cannot allow your child to play 3D games before the child turns 12 years. Games like PUBG, टेम्पल रन, आप में से कुछ लोग खेलते होंगे, सबवे रन, सबवे सर्फर, राइट, इस तरह की जो गेम्स हैं, दे आर ऑल 3D गेम्स जो आपको उस माहौल में लेकर जाती है. यू कैन सी ऑल एंगल्स एंड इट इन्वॉल्व्स मोर ऑफ योर सेंसेस. इस तरह की गेम्स का जो एक्सपोजर है वो बच्चे के न्यूरल माइंड में, दिमाग में न्यूरल चेंजेस लेकर आता है, उसके न्यूरॉन्स में चेंजेस आते हैं, राइट. दे बिकम अग्रेसिव, दे गेट स्टक इन दैट वर्ल्ड, दे डोंट वांट टू लीव दैट गेम. सो आपको ये सीखना है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है. टेक्नोलॉजी कभी भी गलत नहीं है, टेक्नोलॉजी का सही यूसेज आपको माइंडफुली देखना है. तो अब आपको यू हैव टू बी वॉचफुल कि मेरा बच्चा किस तरह की जो गेम्स है वो खेल रहा है, क्या हार्मफुल है उसके लिए और क्या उसके लिए सही है, राइट. हाई रिफ्लेक्स गेम्स, जिन गेम्स में बहुत जल्दी आपको मूवमेंट करना है, कई बार वो बहुत तेज कार गेम्स खेल रहे होते हैं, छोटे हैं वैसे कम खेलते हैं, लेकिन अपने घर में बड़े बच्चों को देख के वो ये चीजों को जल्दी पिक करते हैं, जिसमें इमीडिएटली आगे से कोई एक कोई ऑब्जेक्शन, कोई बैरिकेड आता है और उनको उसको पार करना है, तो इसमें आपको बड़ा क्विक डिसीजन लेना होता है, यस और नो, इधर मोड़ना है या इधर मोड़ना है. दे आर नॉट वेरी गुड टिल दे टर्न 12, तब भी उसके बाद अच्छी नहीं है, बट यस विद द माइंडफुल वर्किंग दे शुड बी इंट्रोड्यूस्ड. उनको सब कुछ यूज करना आना चाहिए. 2D गेम्स आर गुड फॉर देम, राइट. कुछ पजल्स हैं, ब्लॉक्स को जोड़ना है, कलरिंग है, कुछ इस तरह की गेम है, फाइंड आउट वो जो ट्रेजर हंट टाइप की गेम्स हैं बच्चों के लिए, ये सब ऑनलाइन है. लूडो है ऑनलाइन, राइट, कैरम है ऑनलाइन, ये 2 डायमेंशनल गेम्स, राइट. यू कैन इंट्रोड्यूस दिस, बट अगेन क्या ये खेलते रहने देना चाहिए वुड बी अनदर क्वेश्चन, राइट. टीवी शोज एंड टीवी चैनल्स शुड बी एज अप्रोप्रिएट. आप में से बहुत मम्मीज हैं जो बहुत सारे टीवी के प्रोग्राम्स देखते हैं, सोनी टीवी, स्टार प्लस, जी टीवी, आई डोंट नो. एवरी प्रोग्राम इज फुल ऑफ फैमिली ड्रामास. मुझे दिखता ही नहीं है कोई प्रोग्राम जिसमें एक हैप्पी फैमिली दिखा रहे हो. हमेशा हर एक के पीछे एक साजिश चल रही होती है. सो काइंडली abstain, आप देखिए, but abstain the child from sitting with you and watching that program with you. You should know that. Know when it is too much. मैंने आपको ये कहा कि उनको 2D गेम्स खिला दीजिए, राइट, बट कितनी? मैंने कहा बच्चों को एज अप्रोप्रिएट टीवी चैनल देखने दीजिए, पर कितना, राइट. टोटल पूरे दिन में 2 घंटे से ज्यादा आपका टीवी व्यूइंग नहीं होना चाहिए, स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, राइट. अच्छा, अब इसमें भी कहेंगे कि कई बार कोरोना के टाइम पर हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ जाता था, राइट. दिस स्क्रीन टाइम इज नेवर हार्मफुल. रिसर्च इज प्रूव्ड until unless it is bringing fatigue in our mind. क्यों? क्योंकि एक तो आपकी ये स्क्रीन 2D हो जाती, दूसरा उसमें आप कॉन्स्टेंटली लर्न कर रहे हैं.
इस मीटिंग में अगर हम लोग 3 घंटे के लिए भी बैठ जाएंगे ना, प्रोवाइडेड यू विल नेवर फील टायर्ड, राइट, क्योंकि इसमें लर्निंग है, आपका माइंड उस चीज को एक्टिवली आप इन्वॉल्व है उसमें, और इसमें कोई बहुत ज्यादा लाइट्स एंड साउंड्स एंड बैरियर्स एंड ऑब्स्टेकल्स वो नहीं आ रहा है, राइट. सो दिस इज हाउ वी मस्ट नो. ये छोटी छोटी चीजें माइंडफुली इन पे वर्क करना होगा. क्या कंटेंट है जो प्रोग्राम देख रहे हैं बच्चे, चाहे वो कार्टून ही है, कंटेंट आपको, यू हैव टू बी वॉचफुल. When I was a mother, I'm sorry, I'm sharing a personal experience here. I remember once I was working in kitchen and my kids were watching a program which was Shing Chang करके एक program आता होता था. अब तो my kids are pretty grown up, they don't watch it anymore, but they were watching it. And you trust me, I was working in kitchen और वहां पे उस program में topic of discussion क्या चल रहा था, किसकी मम्मी सबसे बुरी है. तो वो सारे कार्टून कैरेक्टर से बैठे ये डिस्कस कर रहे थे कि मेरी मम्मी ज्यादा खतरनाक है, और दूसरा कहता है नहीं मेरी मम्मी ज्यादा मुश्किल वाली है. So is this a program and a content that we should allow a child to watch? I remember that was the day when I had to put no to that particular program and channel. Rule of distance. आपकी स्क्रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आप समझ के चलिए कि आपकी जो स्क्रीन है और आपका जो डिस्टेंस है, राइट, आपका जो स्क्रीन साइज है उससे आपका डिस्टेंस जो है वो 5 टाइम्स होना चाहिए. 5 टाइम्स you should be off your screen distance, right? अगर आपकी स्क्रीन 2 इंच वाली है तो 10 इंच की दूरी चाहिए, राइट? 10 इंच की है तो 50 इंच की दूरी चाहिए. अब आप ये देखिए कि आपने घरों में कितने स्क्रीन, कितना बड़ा स्क्रीन लगाया हो. दैट इज नाउ यू हैव टू सी. आई एम नॉट गोइंग टू कम टू योर हाउसेस, बट हो क्या रहा है, क्योंकि हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हमारे घर में वो बड़ा 65 इंचेस, 70 इंचेस, 75 इंचेस वाले बड़े टीवी हमारे रूम्स की स्क्रीन के वॉल्स पे आ गए, राइट. हमें लगता है बड़ा है तो आंख पे स्ट्रेन कम पड़ेगा. आई एम सॉरी, बड़ा है तो आपको उसी के हिसाब से अपनी डिस्टेंस को 5 टाइम्स उससे दूर लेकर जाना पड़ेगा. क्या हमारे घर इतने बड़े हो सकेंगे? हमने स्क्रीन बढ़ा ली, डिस्टेंस नहीं बढ़ाया, फिर हम थकते हैं. ये टेक्नोलॉजी का रॉन्ग यूसेज है. सो यू शुड नो द रूल. और लैपटॉप का स्क्रीन टाइम और मोबाइल का स्क्रीन यूसेज विल बी डिफरेंट. आपका बॉडी पोस्चर इफेक्ट होगा. कमरे में 3 टाइम्स इल्यूमिनेशन होनी चाहिए, लाइट. इट शुड बी अ वेल लिट रूम. इतना ही काफी है. आप अंधेरे में ना टीवी ऑन करने दें, ना आप मोबाइल्स पे बच्चों को खेलने दें, ना लैपटॉप्स चलाने दें. एंगल, जैसे हम अभी बैठे हैं ना, इस तरह से स्ट्रेट होना चाहिए. मेरे टेबल पे मेरा लैपटॉप है, इट्स ऑन माय एंगल. मेरा आई और मेरा जो लैपटॉप है, इट्स ऑन माय इक्वल distance, level to my eyes. So this is what is required. As a parent, know these things, right? So then things will become, important for you, good for you, right? Easy parenting नहीं है. It's very difficult. हमने सोचा ही नहीं कि एक बड़ा टीवी लगाना ये तो मैंने नुकसान कर लिया. आज आप में से बहुतों ने आज शाम को अपने हस्बैंड के साथ या हस्बैंड ने वाइफ के साथ, यार अपना दा नवा हुणी लिया, हुणी एनिवर्सरी ते नवा टीवी लिया, ये तो मैम ने तो इतना कहता. You have to be watchful now. क्योंकि आप अपने रूम का साइज अब नहीं बढ़ा सकते तो टाइम को कम करिए फिर, राइट. नाउ इंक्रीज द टाइम फर्दर. और उसमें आपको भी टीवी को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आपका बच्चा इतना बड़ा नहीं है कि वो खुद लॉजिक ले सकेगा कि मेरा टाइम खत्म हो गया, मैं चला जाता हूँ, मम्मी पापा कैन वॉच इट फॉर अनदर 2 hours. नो, नॉट विद दीज टॉडलर्स. आई कैन नॉट से दैट फॉर द टॉडलर्स. अनदर थिंग जिसके ऊपर आपको बहुत माइंडफुली काम करना है, आई माइट टेक यू थोड़ा सा शायद हो सकता है आपके लिए ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है आजकल, आज के दिन आपको, बट मैं ये चांस लूज नहीं करूंगी. सो लिसन टू योर चाइल्ड, प्लीज प्लीज एंड प्लीज लिसन टू योर चाइल्ड. दे कम टू यू विद लॉट ऑफ क्वेरीज, पर हम अपनी दुनिया में कई बार इतना बिजी हो जाते हैं दैट वी डू नॉट लिसन. समटाइम्स दिस इज द स्टोरी ऑफ अ फैमिली. A child asking a parent, see what I have made. और पेरेंट इज सो ऑक्युपाइड इन देयर ओन वर्क, चाहे मम्मा किचन में है या काम कर रहे हैं, ऑफिस वर्क में है या पापा कर रहे हैं, या यू टेल मी, आई एम लिसनिंग, यू टेल मी. द चाइल्ड फील्स निग्लेक्टेड. थोड़ी देर में क्या होगा, पहले तो वो निग्लेक्टेड फील करेगा, थोड़ी देर में वो सीख लेगा कि कम्युनिकेशन का ये सही तरीका है कि आपसे कोई बात कर रहा हो तो उसकी तरफ आप ना भी देखो तो इट्स ओके. तो जब आप उससे बात करेंगे तो वो अपनी दुनिया में अपना काम करेगा और वो कहेगा या मैं सुन रहा हूँ, बोली जाओ. और आप सोच के देखो कि वो आपके लिए कितना ऑफेंसिव हो जाएगा. एज अ हस्बैंड वाइफ ही आप सोचो, कभी हमारी आपस में कोई कन्फ्रंटेशन होती है
तो हम क्या कहते हैं, मेरी गल सुनो। एंड जब अगर आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ सुन भी रहे होते हैं तो कहते हैं इधर देख के मेरी गल सुनो, राइट? आई वॉन्ट यू टू लुक एट मी एंड देन लिसन टू मी. द सेम गोज फॉर दिस चाइल्ड. दे वॉन्ट यू टू लुक टुवर्ड्स देम, right? Because if you're not listening to their small talks today, they will not listen to your big talks tomorrow. So now this is what you need to, अगर आप ये चाहते हैं कि वो आपको सुने तो आपको उन्हें सुनना पड़ेगा. This is mindful parenting. बच्चे झूठ बहुत बोलते हैं, राइट? बहुत जल्दी बोलते हैं. घर में स्टोरी, आधे बच्चे मैं आपको बता रही हूँ यहाँ स्कूल में आके घर में भी स्टोरी, आज मुझे बड़ी डांट पड़ी, मुझे क्लास में कोई बुलाता ही नहीं है, राइट? वो झूठ भी बोलते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सच बोलेंगे तो उनको तो रोज ही रोज पेरेंट्स स्कूल भेजेंगे. झूठ बोलते हैं तो मम्मी पापा मतलब हमारी बात को सुन लेते हैं. हम उनको ट्रेन करते हैं, कंडीशन करते हैं. जब वो झूठी कहानी बना के सुनाते हैं, हमें उनकी वो बात सच्ची लग जाती है, राइट? ट्रुथ की तरफ हम उनको कम एनकरेज करते हैं. तो हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चा सही कर रहा है कि गलत, सच बोल रहा है कि झूठ? उसके लिए पार्टनरिंग, मैंने शुरू में बता दिया, बिकम पार्टनर, राइट? मम्मी को पापा, ये देखो आपके लिए क्या कह रहा है. यू शुड टॉक हस्बैंड एंड वाइफ फर्स्ट. अपने पार्टनरिंग ठीक करिए, फिर बच्चे की पेरेंटिंग ठीक हो जाएगी. बच्चे ने कहा मैम ने मुझे बड़ा मारा, मुझे बाहर भी नहीं लेकर गए, क्या हो गया? टॉक टू द टीचर, नो द ट्रूथ, बिकम पार्टनर, राइट? हाँ, गलती होगी, जिसकी होगी उसको ठीक करना पड़ेगा, राइट? सो यू हैव टू, जनरली हम क्या करते हैं, हम ना किसी भी सिचुएशन में, आपको एक एग्जांपल देती हूँ. आई थिंक या आई हैव यूज्ड दिस हियर. अगर आपके बच्चे से कोई चीज टूट जाती है, हमारा इमीडिएट क्वेश्चन क्या होता है? किसने तोड़ा? अगर घर में खास करके दो हैं, ये किससे टूटा? आई डोंट नो. ऐसे ही टोन होती है और ऐसे ही हमारा होता है, किसने क्या गिरा दिया? ये जो कौन, who needs to be replaced with how did that thing happen, right? That is more important. जब आप who पूछते हैं तो बच्चा को ये समझ आता है कि हम किसी और पे ब्लेम डाल के अपने आप को बचा सकते हैं. So it's not who which is important, it is how. और जब वो आपको how एक्सप्लेन करता है तो वो पूरी बात शुरू से शुरू करेगा. पता है मम्मा, जब आप दूसरे रूम में चले गए ना, तो हम ना पहले तो ये गेम खेल रहे थे, फिर हमने ना उसमें ना मम्मी मैं जीत रहा था, फिर दूसरा बच्चा कहेगा नहीं नहीं मैं जीत रहा था, राइट? और उसमें फिर ना ये हुआ, जब इसने मुझे पकड़ के वो मुझसे खींचा तो ना फिर ये यहां से हिल गया और ये गिर गया. पूरा उसने आपको नरेट किया, आपने उसको 2 मिनट सुना. यू वर लिसनिंग, you were communicating, you were getting connected, you were getting partnered in their situation, right? So this is what is required. उनको सुनो, फिर वो झूठ नहीं बोलेंगे, right? क्यों नंबर कम आए, right? So उनको सुनने दो पूरा. मैडम ने कम नहीं दिया, मत बात मानो एक बारी में. बेटा क्या हमने उस चीज में पूरा काम किया था? पूरा पढ़ के गए थे? हम सेल्फ रिफ्लेक्शंस में लेके जाएं. हाउ ऑफ द प्रोसेस, इफ यू गेट इनटू दैट प्रोसेस of a situation, right? How did you write? How did you attempt? If we go into how of any situation, parenting will become, the child will get better, right? Parenting will get better. So and आपका communication increase हो रहा है. एक और चीज which I will not, and I think बहुत हम में से मेरे teachers agree करेंगे, so कम हम पक्का agree करेंगे, helicopter parenting is increasing nowadays. Yeah, too much of a parent connection with the child. बच्चा कुछ करने की कोशिश करने लगता है, उससे पहले हमें होता है कि हम कर दें. मैम अभी छोटा है ना, अभी कर नहीं सकता. आप इनको देखो कि ये क्या क्या कर सकते हैं. वेट एंड वॉच, डोंट डू हेलीकॉप्टर. बच्चे ने 2 बार एप्पल बनाने की कोशिश करी, उससे नहीं बना, पेरेंट कहता लिया फटाफट मैं ही बना देना. बेटे ऐसे नहीं होगा, आपको तो आता ही है. हमें क्या करना है, हमें उसके अंदर सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस इनकलकेट करने, हमें मिलके उसको ये सिखाना और समझाना है कि यू कैन हैंडल योर सिचुएशंस इंडिपेंडेंटली, राइट? मैं तू अपने बेटा ये नोट ना डायरी से निकाल के मैम को दिखा देना, राइट? हमें लगता है नहीं ये भूल जाएगा. फिर हम क्या करते हैं, चल आज मैं ही छोड़ने चली जाती हूँ स्कूल. आप आते हैं, फिर टीचर को बताते हैं. बच्चे को लगता है ये तो मैंने खुद दिखाना था ना मैम को. लेकिन दूसरे बच्चे की मम्मी ने, जिसने ये उस पर विश्वास करके उसको बोला होता है कि ये नोट तुम दिखाना, वो बच्चा कॉन्फिडेंट होता है कि आज मैं जाके जब मेरे मम्मा पूछेंगे आपने दिखाया, वो कहेगा हाँ जी मेरे टीचर ने रिप्लाई किया. आप बच्चे की अपॉर्चुनिटीज को खींच लेते हो जो वो खुद कर सकता है. डोंट हॉवर ओवर देम.
हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग का मतलब होता है उन्हीं की दुनिया में उनके ऊपर मंडराते रहना, दैट इज हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। इनको थोड़ा छोड़ो, सुपरविजन में छोड़ो। स्कूल में छोड़ दिया तो दे आर बीइंग सुपरवाइज्ड, पार्क में गए तो पकड़ पकड़ के स्लाइड तक मत लेकर जाइए, चढ़ने दीजिए ना, राइट? सो दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। फर्स्ट अटेम्प्ट शुड बी विद द चाइल्ड। जब भी कोई आपने कहा कि ये लिखना है बेटा, आज मैम ने ये लाइंस ड्रॉ करने के लिए बोला, ये करना है, पहला अटेम्प्ट बच्चे का होना चाहिए। उसको कोशिश करने दो ना, उसको क्या समझ आ रहा है। अगर वो नहीं कर पाया तो फिर पेरेंट को सिर्फ हेल्प करना है। आप उसको बताओ यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, यू हैव टू एंड ऑन दिस पॉइंट। एक पैरेलल उसके लिए पेज लो, जैसे क्लास में टीचर बोर्ड लेता है, बेटा इसको यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां पे एंड करेंगे, यहां पे स्टार्ट करेंगे, यहां पे एंड करेंगे, दिस इज हेल्पिंग। फिर भी ना हो, देन द पेरेंट शुड कम इन इंटरवेंशन। लाओ एक बार हाथ पकड़ के दिखा। हम क्या करते हैं, पहला अटेम्प्ट द चाइल्ड फेल्स, हम हाथ पकड़ के लिखाना शुरू कर देते हैं, राइट? पहला अटेम्प्ट बच्चे से खाना नहीं खाया गया, स्कूल में खत्म नहीं हुआ, हम कहते हैं मैम गोद में बिठा के इसको खाना खिला दो। नॉट वर्किंग ऑन गिविंग दैट फ्रीडम टू द चाइल्ड। 2 दिन गलत करेगा, 3 दिन कम खाएगा, 4 दिन में कुछ प्रॉब्लम आएगी, 5th डे पे वो रिजॉल्व करेगा, 100% करेगा। और जिस दिन वो अपने आप अपने फोक से उठा के वो खाना खाएगा ना, आप जान भी नहीं सकते हैं कि उसके अंदर कितनी सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस आ जाएगी, राइट? मैम इसकी निक्कर में लटकी हुई थी, मैम इसने इसका बटन नहीं बंद किया हुआ था। जितनी बार आप उसको घर पे कोई ड्रेस लेकर दो, कोशिश करो स्कूल की ड्रेस से मिलता जुलता लेकर दो, उसको घर में सिखाइए। जब वो अपने आप अपनी ड्रेस को बंद करना सीख लेगा ना, वो कहेगा प्लीज आई एम, दिस इज माई प्राइवेसी, आई लाइक टू बी ड्रेस्ड अप माई सेल्फ। उनको करने दो। सुबह कई बार वो कहते हैं मुझे अपने आप शर्ट बंद करनी है, मम्मा मुझे शूज पहनने आते हैं। नहीं नहीं, तू लेट हो जाएगा। अरे 5 मिनट जल्दी खुद उठो ना। अगर वो खुद शूज पहनना चाहता है उसको करने दो ना। लेट देम बिकम इंडिपेंडेंट। बच्चा बैग उठा सकता है। मैंने कल भी एक पेरेंट को बोला कि सर, नहीं मैडम बड़ा भारी बैग है। मैं कहा सर आप बैग का साइज देखो, बैग में बुक्स देखो। अरे जब 3,000 बच्चा अंदर आ रहा है, सबने अपना बैग उठाया हुआ है, इस बच्चे को उठाने दो ना। बट नो, द पेरेंट वाज एडमेंट, नहीं मैम आज थोड़े दिन, मैम 1 हफ्ता और, एज इफ पता नहीं क्या हो जाएगा। मैंने कहा सर अगर आपको लगता है 1 हफ्ते में इट्स यू विल बी हैप्पी, गो। बट सोचो वो बच्चा जो अपने आप उतरता है, अपना बैग उठा डालता है, खुद अपने फ्रेंड्स के साथ गप्पे मारता हुआ आता है, और दूसरा बच्चा अपने घर में भी पापा की उंगली पकड़ के चल रहा है, स्कूल में भी अपने पापा की उंगली पकड़ के, उसका सोशल सर्कल कैसे बनेगा, राइट? ये तो चलते चलते दोस्त बना लेते हैं। सो लर्न टू गिव देम इंडिपेंडेंस एंड नॉट बिकम हेलीकॉप्टर पेरेंट, बिकॉज व्हाट यू वुड डू फॉर देम टुडे will make them a capable person ahead, right? What they would do for themselves. Teach them to do things for themselves. Don't do things for themselves. Teach them to become independent. I'll be a little quick on this now. Don't label them. Don't label them ever. बच्चे ने काम नहीं किया, इन्हू कुछ आंदा ही नहीं, right? इन्हू समझ ही नहीं आंदा, मैं 3 दिना तो एको चीज लिखाई जानी है, he is good for nothing. Don't say that to the child. 2, 3, 4 बार बोलने के बाद the child will fix it up in his or her mind. I am good for nothing. Don't say that ever, right? सिर्फ उस पे फोकस करो जो आप करवा सकते हो. Very important, as a parent, be watchful when you go to the market to buy anything for them. Toys or games. I wanted to ask a question here to the parents, but keeping a time constraint, I'll go a little quick on that. Toys is easiest to pick. घोड़ा ले दिया, कार ले दी, एक कोई गन खरीद दी, कोई वो एक बाजा सा खरीद दिया, गए नया सा, मैडम अच्छा लगा हम तो, हमने तो ले दिया बच्चे को, राइट? लेने कुछ गए लेकर। दुकानदार भी सबसे ज्यादा टॉयज सेल करता है। हाथी पकड़ा दिया, मैडम नई तरह का एलिफेंट आया, देखो उठता है बैठता है, ये देखो मैडम चलेगा मंकी और ड्रम बजाता हुआ चलता है। इजीएस्ट, उनके लिए सेल करना इजी है, आपके लिए खरीदना इजी है, बच्चे के लिए अकेले खेलना इजी है। Invest in games. Games require partnership. कैरम खेलते हैं 2 की जरूरत है मिनिमम, लूडो खेलते हैं 2 की जरूरत है मिनिमम, राइट? आप उनके साथ में कोई भी सॉलिटेयर या उनकी और गेम, इतनी सारी बोर्ड गेम्स खेलते हैं, इट रिक्वायर्स 2 people. वही कार जिसको आप अकेला पकड़ा देते हैं तो वो एक टॉय है, लेकिन वही कार जिसको आप एक ट्रैक में जब चलना सिखाते हैं वो गेम बन जाता है. हाउ टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, इट बिकम्स अ गेम. Invest on games, not on toys. Yeah, give them toys. बच्चे हैं, you do give them toys.
बट सी आर यू इक्वली गिविंग इंपॉर्टेंस टू गेम्स? सर्च करो ना इंटरनेट, हम नए नए सीरियल्स तो वहां से सर्च करते हैं, गेम्स फॉर दिस एज ग्रुप सर्च करिए, आपको मिलेंगी। उनको ब्लॉक्स चाहिए, उनको डोज चाहिए, उनको क्ले चाहिए, ये चीजें चाहिए, उनको बीड्स चाहिए, बड़े बड़े थ्रेड्स चाहिए। वर्क ऑन दिस। एक गलती यहां कर रहे हैं हम, ब्राइब्स वर्सेस रिवॉर्ड्स। तू ऐसा कर दे फिर मैं तेरे को नया टॉय लेकर दूंगी, यू आर ब्राइबिंग। फिर वो अगली बार से कहेगा आप मुझे पहले ये लेकर दो फिर मैं ऐसा करूंगा। डू नॉट ब्राइब। कोई कंडीशन पे चीज को नहीं सिखाते। एप्रिसिएशन, रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड्स कम इन द वे ऑफ यू आर हगिंग देम, यू आर एप्रिसिएटिंग देम, डू दैट, डोंट ब्राइब देम। इससे आप उनको जेलस बना देंगे, राइट? इससे आप उनको ग्रीडी बना देंगे, which is not a good trait in adult. एक लालची adult, right, can become actually an anti-social element. लालच चोरी भी करवाता है, लालच झूठ भी बुलवाता है, लालच किसी का and it can go to any extent, किसी को भी हार्म भी करवाता है। So rewards, जो उन्होंने सही किया उसके लिए रिवॉर्ड करो। कुछ अपने कुछ चीजों को प्लीज सब्स्टिट्यूट करिए, द वे यू टॉक टू देम, rather than just telling them don't do this, tell them what they should do. फोकस सही होना चाहिए, ऑल्टरनेटिव बताइए। डोंट राइट ऑन द वॉल्स, गल खत्म। टेल लेट अस राइट ऑन द पेपर, राइट? आई विल गेट यू कलर्स एंड वी विल राइट ऑन द पेपर। सो आपको कुछ स्टेटमेंट्स को चेंज करना है। डोंट रन नहीं कहना है, ओनली वॉक प्लीज। डोंट येल, please speak, don't yell की जगह speak softly. Don't stand on a table. Table is a place where you keep your things. Chair you sit on. Don't talk while I am talking. बेटा please wait till we give you turn. So ये जो don't है, इनको ही हमने change करना है। Don't climb on the slide from this side. बेटा there are steps to go on the slide and then you come down the slide. हम सही तो बताते ही नहीं, डोंट कह के बात को खत्म कर देते हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। नो कंपैरिजंस, नो क्रिटिसिज्म, माइंडफुली वर्क ऑन दिस। अपना भी कंपेयर मत करो, ओदा बच्चा बड़ा अच्छा कर रहा है मेरा रह गया। बच्चे को भी ये मत करो, कहो तेरी क्लास के बाकी तो कर ले रहे हैं तू रह गया। कंपैरिजन ब्रिंग्स गिल्ट इन देम, इट लोअर्स देयर सेल्फ एस्टीम। आप कहीं ना कहीं उसमें ना डेंट्स डालते जा रहे हो, वो आपसे दूर होता चला जाएगा कि मेरे मम्मी पापा को तो मैं अच्छा नहीं लगता हूँ, राइट? और इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। सिबलिंग राइवलरी, एक बच्चे को दूसरे के साथ कभी भी कंपेयर मत करो। दे बोथ आर डिफरेंट, दे बोथ आर विद देयर ओन ट्रेट्स, नहीं तो आपस में पूरा दिन लड़ेंगे। डोंट क्रिटिसाइज, हर टाइम पर उनको उनकी बेइज्जती करना शुड नॉट बी योर टारगेट, राइट? इट ब्रिंग्स शेम इन देम एंड व्हेन दे आर इन शेम दे ब्रेक इन देयर कॉन्फिडेंस, राइट? उनके अंदर जो इमोशनल वुंड्स, जो तकलीफें, जो जख्म हो जाते हैं ना, वो उनको तो बताना भी नहीं आता। इतने छोटे हैं कि ये तो बता भी नहीं सकते। हम बड़े तो आपस में बैठ के बात कर लेंगे ना, हमारे को हमारे हस्बैंड ने कुछ कह दिया, मम्मा ने कह दिया, हम तो बोल भी लेते हैं आपने ऐसा किया, आई वाज हर्ट। इनको तो बोलना भी नहीं आता, ये सिर्फ अपने आप को दूर कर लेंगे। सो ये सब कुछ करने के लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू बिकम माइंडफुल पेरेंट, यू हैव टू डेवलप पेशेंस इन योरसेल्फ। आपका बच्चा अपने तरीके से ग्रो करेगा। He's a unique person, right? And let your child grow in the right manner. Be patient in their every habit. ये कुछ पॉइंट मेरे टीचर्स ने मुझे दिए थे फूड हैबिट्स को लेके। प्लीज सेंड योर चाइल्ड टिफिन इन स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ा डालिए। ये मत सोचिए कि स्कूल आ रहा है तो उन 2 परौंठियां स्कूल खत्म कराएगा। घर आधी खाता था तो स्कूल में भी आधी खाएगा, और शायद वो आधी भी नहीं खाएगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। उनको सब्जी रोटी मत दीजिए, रैप। ये मुझे आई एम श्योर क्लास टीचर्स ने आपको ये चीजें हाउ टू सेंड योर टिफिन बताया होगा। इससे आप बच्चे के अंदर इंडिपेंडेंस इंकलकेट करते हैं। एक ऐसा टिफिन जिसको वो खुद खोल सकता है। सबसे महंगा टिफिन लेने की जगह वो टिफिन लीजिए जो हेल्दी है प्लस जिसको वो खुद खोल सके। इतना कंफर्टेबल टिफिन होना चाहिए। हर खाने में सब्जी, सैलेड, परोंठी सब देने की जगह ऐसा खाना जिसको वो इंडिपेंडेंटली उठा के खा सके, खत्म होने पर उसके अंदर सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आ सके, राइट? सो दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। और किसी किसी दिन, क्योंकि उसके अंदर सेपरेशन एंजाइटी है, right? वो सारा खाना नहीं खाकर आएगा, कोई बात नहीं है। एक दिन खाना नहीं खाकर बच्चे ने आया तो ट्रस्ट मी कोई भी बात नहीं है,
उसको ठंडा पानी वानी पिलाइए, आराम करने दीजिए, घर से शुरू कर लीजिए कुछ खाना खिलाना. गिव हिम सम टाइम टू सेटल डाउन इनटू अ न्यू रूटीन, राइट. कुछ चीजें जब मैं कहती हूँ टाइम स्पेंड करिए, तो प्लीज नर्सरी के बच्चों को, एलकेजी के बच्चों को इनको ट्यूशंस पे मत डालिए. you're losing your time with them, right? You're losing your time. इस पे मैं लंबा कभी और बात करेंगे, right? So they watch you and then they grow. So we, three of us have to come together, the school, the parent, right? And the teacher, right? So तीनों को हमें आपस में, the student, teacher and parent have to come together. Sorry, for you, actually the meeting time, as Antima ma'am has already conveyed, is Wednesday. Still on Saturdays, if you want to come, that you can come on with previous appointment with the teacher. This is getting connected to school. As a parent, आपको अपने बच्चे के स्कूल के साथ में भी connect होना है, right? So these are few things that you should know, besides knowing all the tips and tricks of parenting, कि हमें patience भी रखना है, चीजों को delay करना भी सिखाना है, हमें we have to be more watchful on their habits, TV को भी ध्यान में रखना है. ये सब चीजों के साथ साथ स्कूल के साथ connect होइए. Right, so we will call you on different days. A note is sent in the almanac, in the school diary. So please be watchful. Right, parents workshop में मम्मी पापा दोनों attend करिए. स्कूल के fee bank के साथ WhatsApp में connected रहिए. Right, rather than calling a teacher, send a message. हर टाइम आपका कॉल एक टीचर नहीं ले पाएगा. Drop a message, because अब आप लोगों के पास में नंबर है. I'm sure the teacher will reply you back. फिर भी अगर कुछ रिप्लाई नहीं आता है तो वी हैव अ डेडिकेटेड स्कूल नंबर, एक व्हाट्सएप नंबर हमारे स्कूल का दिया हुआ है. द क्लास टीचर्स कैन रीशेयर दैट. आप वहां लिख दीजिए कि आई एम ट्राइंग टू रीच द स्कूल बट नोबडी इज लिसनिंग टू मी. वो नंबर सुखम मैम के पास भी है, वो नंबर मेरे पास भी है, वो स्कूल प्रिंसिपल के पास भी है. आप वहां जो लिखेंगे वो डायरेक्टली हमारे पास आएगा. और मेरे टीचर्स की ये बिल्कुल टेंडेंसी नहीं है कि अगर आपने कुछ लिखकर भेजा तो वो इसको अपने अगेंस्ट एक कंप्लेन लेते हैं. नो, वी टेक इट एज अ सजेशन. आपको कुछ हमें कमी नजर आई, आपने बताया, विल रेक्टिफाई दैट. नो एवरी डिटेल ऑफ द स्कूल, क्या हमारा टाइमिंग है, क्या हमारे एग्जाम के डेट्स हैं, कब हम छुट्टी ले सकते हैं, कैसे हम छुट्टी ले सकते हैं. गेट कनेक्टेड टू द क्लास टीचर. एंड नाउ यू हैव एल्मेनिक. एल्मेनिक में सब रूल्स दिए हुए, प्लीज उसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए. राइट, टॉयलेट ट्रेन देम, घर में एनकरेज करिए. राइट, सो ड्रेस कोड बच्चों को तो आप भेज ही रहे हैं. मेरा एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट रहेगी, पेरेंट्स, व्हेन यू कम टू पिक अप योर चाइल्ड, you also need to follow the dress code. Coming to school in night suits, which you should know is a night suit, is not permissible. Bermudas for anyone is not permissible. You have to have, complete lower, full length lower chahiye hota hai. That's a school rule. And please understand, rules are not broken. They are meant to be followed. So please and please follow this. You look good when you walk up to the school in a partially formal dress, right? Do not call repeatedly. They are little kids. They are 3 to 4 years, 6 years तक ये हमारे पास kindergarten में है, right? They are very lovable. They are like slate, blank slate है ये. जो लिखोगे इस पे black board है ये, white board है ये, green board है, right? Whatever you will write on them, right? That will remain. So कुछ चीजें आपको teachers already बता रही हैं कि इनको कैसे सिखाना है. Lot of gestures, इनको pictures दिखाओ, make them happily, learn on things. ये चीजें रहेंगी, right? So as a parent, let your child grow they are little sapling, they're growing, right? ये जो shape आप इनको दे दोगे, they will take that shape. अभी their stems, their branches, their roots, all are soft. या तो आप इनको uproot कर सकते हैं, या फिर इनको एक strong foundation दे सकते हैं. या तो आप इनको अपने हिसाब से और सोसाइटल नॉर्म्स के हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, राइट? या फिर आप इनको अपने हिसाब से वाइल्ड में उगने दे सकते हैं. तो हम करते क्या हैं? वी हैव टू प्रून देम स्लोली एंड स्टेडीली. धीरे 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 जो भी अनवांटेड है उसको हटाते जाएंगे, और एक फर्म फाउंडेशन के साथ हमें इस छोटे से पौधे को एक स्ट्रॉन्ग पेड़ बनाना है. क्योंकि जब एक पेड़ स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो फिर वो अडेग होता है, फिर वो जल्दी हिलता नहीं. बच्चे छोटे हैं अभी तक, कोई अगर आप में इन चीजों को आप फॉलो नहीं भी कर रहे थे तब भी अभी तक कोई डैमेज नहीं हुआ. नो डैमेज हैज बीन डन एज ऑफ नाउ. आपको कईयों को अगर शायद लगे कि मैं तो इतनी चॉकलेट्स दे देती थी, मैं तो टीवी 3-3 घंटे देखने देती थी, अभी तक आपके बच्चे का डैमेज नहीं हुआ.
If you get empowered, you will end it here only. But once the child comes into 8 to 12 years, अगर तब भी आप ये फॉलो करते जाते हैं तो फिर डैमेज हो चुका होगा. फिर आप सिर्फ कोशिश करेंगे कि उसको वहां रोक सके. और 13 to 19 years अगर तब तक भी पेरेंट्स ना समझेंगे तो फिर तो मार्क्स जो हैं वो परमानेंट रह जाते हैं. तो यू आर द मोस्ट कंफर्टेबल पेरेंट्स टू टच अपॉन. सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है. आपको सीखना है, आपको बढ़ना है, कंसेंसस लाना है, आपस में एक साथ रहना है, टीचर के साथ कनेक्ट रहना है. राइट? सो हैप्पी पेरेंटिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग दैट पेशेंट. इट्स नॉट इजी टू लिसन फॉर दैट लॉन्ग टाइम, बट सोच के चलिए बच्चा आपका 4 घंटा टीचर को सुन के जाता है. सो अप्रिशिएट देम. वो कितना कुछ सीख के जाता है, कितना कुछ सुन के जाता है यहाँ से. So thank you so much. Now all queries can be put up into chat box. Sangeeta ma'am, if I can add, thank you for the wonderful session as you always do. And the tips were very workable tips if parents work on them. And I'm sure we are going to have a good partnership with the parents after going through your session. What I want the parents, everyone, each one of us, we understand, but we are not accepting that our children have been uniquely impacted by the pandemic crisis. And they went through this crisis at a time when it was time for their physical, social, and emotional development stages. So there are gaps which we need to fill up within a limited time, like when they have joined school. So sudden closure of schools, no outdoor activities for them, and disruption in routine. So क्या हो रहा है कि अब हमको उसको रीअडेप्ट करने में डिफिकल्टी आ रही है एज अ पेरेंट, एज अ चिल्ड्रन. बच्चों को सुबह थोड़ा अर्ली उठना पड़ रहा है. दे आर टॉयलेट ट्रेनिंग उनकी चल रही है इन स्कूल एंड एट होम. बच्चा सुबह खा के नहीं आ रहा, जल्दी से पेरेंट्स उसको कहते हैं चल मिल्क पी ले फटाफट, है ना. सो ही इज ड्रिंकिंग मिल्क, ही इज क्राइंग एंड कमिंग टू स्कूल. व्हेन यू आर रशिंग कि 8:30 हो गई, क्लास लग गई, आप लेट घर से शुरू हुए हो, तो बच्चा पहले ही वो उसमें आ गया स्ट्रेस में कि मैं लेट हो गया हूँ, मैंने खाना नहीं खाया, आप डांट भी खाता आ रहा है बच्चा. सो इट इज थोड़ा सा हमें अपने रूटीन को चेंज करना पड़ेगा, शेड्यूल बनाना पड़ेगा फॉर द चाइल्ड, फॉर आवरसेल्व्स. थोड़ा सा बच्चा अर्ली उठे, फिर वो हैप्पी चाइल्ड आता है. एंड गिव टाइम टू द टीचर्स एंड योर चिल्ड्रन टू एडजस्ट टू स्कूल. मैं कुछ चैट में देख रही थी, खाने की क्वेरीज आ रही हैं. वी गिव एम्पल टाइम फॉर देयर फूड एंड इट इज वेरी वेरी रेयर अगर बच्चा खाना खा रहा है एंड टीचर सेज कि क्लोज डाउन योर टिफिन. It's not there. We give them ample time to have their food. Fruit break के लिए आया है parents का. Children are with us for 4.5 hours with us. उसमें UKG has started giving fruits to them, fruit break. पर अगर आप सोचो कि जिस बच्चे ने टिफिन भर के पहले फ्रूट खा लिया, he won't be eating his paronthi, है ना. So जैसे जैसे LKG nursery adjust होएगी, we will begin with that fruit break for them also. एक किसी ने डाला था कि we need grandparents meeting also. So we can plan that. जो इश्यूज ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आते हैं, जो ओवर प्रोटेक्टिव हैं, वी कैन डिस्कस फ्यू पॉइंट्स विद देम आल्सो. और बाकी टीचर्स आर देयर टू हेल्प यू आउट कभी भी कोई मुश्किल आती है. सो व्हाट वी नीड टू इज उनका एक शेड्यूल बनाए, रूटीन बनाए. दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. 2 दिन बच्चा रो रहा है, इट इज ओके. एक दिन एक बच्चा, वन चाइल्ड वाज विद मी, ही हैड अ बिग टिफिन फिल्ड विद पॉपकॉर्न. द चाइल्ड इज नॉट गोइंग टू ईट पॉपकॉर्न एट एवरी डे, है ना. ही वोंट बी एबल टू ईट, कभी गले में भी फंस सकता है. एंड ही ड्रॉप्ड इट इन अ विजिटर रूम. पर ये था कि वो आई वाज अराउंड, टीचर वाज अलोंग विद अदर चिल्ड्रन, तो आई टॉट हिम काउंटिंग विद दैट ओनली. आई आस्क्ड हिम टू पिक अप हिज टिफिन. एक एक पॉपकॉर्न उठा रहा है, ही इज क्राइंग, ही इज पिकिंग, ही इज काउंटिंग आल्सो. सो हमें लगता है कि बच्चा जो रो भी रहा है, क्लास में भी नहीं है, तो ही शुड लर्न समथिंग बिफोर गोइंग होम. तो जो भी आप खाने को भी दे रहे हो, थोड़ा सा देख के कि क्या दे रहे हैं. इस बार पॉपकॉर्न है. लास्ट ईयर हमारे पास एक बच्चा था, वो big tiffin full of makhanas आ रहा था. So it is all very dry for the child to eat, है ना. Little quantity, it is okay. And thank you ma'am for such a wonderful session. And I hope the parents have learned and we'll be working together as partners now. Thank you. Thank you, teachers and parents. My pleasure, ma'am. I could see a few things in the chat box. May I go ahead with Anku ma'am? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And if I have missed on anything, फिर आप वो अगर किसी की query है तो देख लेंगे, right? Somebody had written, we need session for father also, and this is what I've said. That must have come later. Yeah. So this has to be. हमने कहीं mention ही नहीं किया कि it is mother's workshop. I think now we have started making it as parents workshops. So I'm glad I can see some father also who has joined there. So this is parenting. मम्मी पापा both, right? अगर आप अपना काम, आप भी अगर हाउस मेकर भी है ना,
तो आई एम श्योर अगर आज ये मीटिंग ना होती तो इस टाइम आप अपना किचन में खाना बना रहे होते, चाय बना रहे होते, लॉन्ड्री शुरू करी होती, कुछ भी कर रहे होते, राइट, बट काम कर रहे होते। तो आप अपना काम छोड़ के यहाँ बैठे हैं ना, तो क्या पापा आधे दिन की छुट्टी लेकर 2 घंटे का ऑफ लेकर नहीं बैठ सकते? वो भी अपने बच्चे के लिए बिठाओ। स्कूल आना पड़ता तो 3 घंटे बुलाना पड़ता हमें, यहाँ तो हमने 1 घंटे के लिए बिठाना है आपको। तो ये हमें आपस में कंसेंसस लेकर चलना पड़ेगा। यस, नेक्स्ट टाइम इंश्योर ही और शी जॉइंस, है ना, आप में से एक भी, और आपस में बैठो। अब जब आप बैठोगे चाय पर तो शाम को प्लीज ये पूरा लेक्चर अपने हस्बैंड को नहीं सुनाना। तुसी देख लो, ये तुहानू भी सीखना पैना है। तो यहीं से अपनी कॉन्वर्सेशन शुरू करो, हम दोनों को सीखना पड़ेगा। मुझे लगा था शायद मेरे लिए है, पर वो तो हम दोनों के लिए होगा यार, ये हम दोनों को सीखना पड़ेगा। बड़ी, मैंने आपको कहा ना, दूसरे पे ब्लेम बड़ी इजीली डाल देते हैं। और अभी तो आप बहुत यंग पेरेंट, एंड आई एम श्योर आधों ने, अगर मैं ये बात टच ना करती तो आधों ने ये सोचा होगा भी कि हुनी मैं फोन करना सी एंड आई वुड हैव टोल्ड हिम, पता कितना अच्छा सेशन था, कितना कुछ था, तुसी मेरी गल नहीं ना सुनते, होर बिगाड़ लो। वी थ्रो द ब्लेम। हाँ, इट्स सो इजी, मेरी गिल्ट खत्म, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक ये था। सो नेक्स्ट टाइम किसी ने फ्रूट ब्रेक के लिए लिखा था, सुखम मैम ने ऑलरेडी आपको कह दिया, 4 घंटे ये हमारे पास होते हैं। अब सोच के देखिए, 90% इनमें से सुबह दूध पीकर आते हैं, और कई बच्चे दूध के साथ कोई कुकी या कुछ भी खाकर आते हैं। फिर हम चाहते हैं वो स्कूल में जो हमने उसको फ्रूट बॉक्स दे दिया वो भी खाया है, फिर एक टिफिन में हमने उसको परांठी दे दी वो भी खाया है, उसके बाद वो पढ़ भी ले, खेल भी ले, जो आपसे दूर जाने की घबराहट है वो भी झेल ले, सब कुछ फिनिश करके। या लॉट्स ऑफ बिस्किट 2 डाल दीजिए। मैं कहती हूँ आजकल, अंकु मैम, आई डू टेल पेरेंट्स, अभी अगर आपका बच्चा कुछ नहीं खा रहा तो अच्छा बिस्किट, अगर आप बेक करना जानते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं, ये तो 2 बिस्किट डाल दीजिए। अरे कम से कम मम्मा को इतनी तसल्ली तो होती है कि मैंने 2 बिस्किट डाले, 2 खा के आ गया। छोटा ओरियो का पैकेट खरीदने में भी हमें शर्म आती है, पापास को ज्यादा आती है, 5 रुपए वाला कोई देने वाली चीज है, बड़ा आता है, राइट। अब बड़े में से अगर बच्चे ने 1 खाया तो हम क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं खा के आया, नॉट रियलाइजिंग कि वो 1 खा के आया, कुछ भी नहीं खा के आया। तो 1 पीस केक का, होममेड केक का, या 2 कुकीज, 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड किसी दिन, इतना सा ही खाते हैं वो। आपके खाने से ज्यादा स्कूल में उनको बातों का शौक होता है, भागने का शौक होता है, बाहर जाने का शौक होता है। ट्रस्ट मी, थोड़ा दीजिए, जब वो उतना सा खा लेगा आप बहुत खुश रहेंगे, राइट। किसी ने कहा कि द सेम इशू आई एम फेसिंग इन 3rd क्लास ऑल्सो, मेरा आंसर वहां भी सेम रहेगा, वहां पर भी हम इनको फूड ब्रेक का टाइम दे रहे हैं। तो राइट, उसमें फ्रूट ब्रेक, या फ्रूट ब्रेक का एक मैं 3rd क्लास में, बिकॉज नाउ 3rd इज लॉन्गर, फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। टेकन योर पॉइंट मैम, राइट। किसी ने एक चीज लिखी सुखम मैम, जो मुझे आई वुड लाइक टू रिफ्लेक्ट हियर। They say, मैम, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन। क्लास में कुछ इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, उन्हीं को बार बार चांस मिलता है। कितनों को आप में से इंटेलिजेंस की डेफिनेशन आती है? अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ है, टीचर्स जब मैंने साइकोलॉजी में मास्टर्स किया, जब मैंने साइकोलॉजी में मास्टर्स किया तब जाके तो मुझे इंटेलिजेंस की डेफिनेशन समझ में आई। हम इमीडिएटली एक बच्चे को लेबल कर देते हैं, आप समझ रहे हैं। अब दूसरे बच्चे को इंटेलिजेंट कहने का, मैंने आपको कहा था डोंट लेबल योर चाइल्ड। दूसरे बच्चे को इंटेलिजेंट कहने का मतलब है कहीं ना कहीं आपने कंपैरिजन में अपने बच्चे को लेस इंटेलिजेंट कह दिया, डम्ब कह दिया, डफर समझ लिया। यू आर लेबलिंग योर ओन चाइल्ड। कोई बच्चा इंटेलिजेंट ज्यादा नहीं है, और ये एज ग्रुप तक, राइट। आप लोग इंटेलिजेंस सिर्फ एकेडमिक लेकर चलते हो, आने दो। आपके बच्चे को टर्न नहीं मिल रहा, टॉक टू द टीचर, मैम द चाइल्ड इज इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन दिस, राइट, इसको करने दो, प्लीज एनकरेज लेट द टीचर लिसन। आपकी 10 रिक्वेस्ट पे नहीं होता तो आप, हर बच्चे में एक अलग ट्रेट है मैम, राइट। एक बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा निकलेगा, एक सिंगिंग में अच्छा है, हम क्या चाहते हैं एज हेलीकॉप्टर पेरेंट, मेरा बच्चा ड्राइंग भी कर ले, अब मेरे बच्चे की पोएट्री में भी प्राइज आ जाए, अब मेरा बच्चा रनिंग में भी सबसे आगे निकल जाए। इतना मत उससे एक्सपेक्ट करो, ये आपकी एक्सपेक्टेशंस है। आप प्रोसेस को अप्रिशिएट करो, वो जो कर रहा है उसको अप्रिशिएट करो और उसी को पॉलिश करो। दैट इज व्हाट वी नीड। Anku, do you have something to add on? Ma'am, another thing was that the parents are saying that leaving the parents drop their child to the classroom.
this, I would say that it's a thing for us also, that quite a few parents want their queries to be answered there and then during the time of dispersal or arrival. Whereas that time the teachers are busy in the classes, either they are moving the kids in or out of that way. So if so pick and drop time is not PTM time. Exactly. Yes. It's not every day cannot be PTM. So उसमें क्या होगा, वही चीज जो मैंने कहा ना, एक्टिव लिसनिंग नहीं है. आप अपने टीचर को कुछ बोली जा रहे हो, टीचर वहां 30 बच्चों को पीछे बिठा रही हैं, राइट, वो आपकी तरफ देख भी नहीं रही हैं. फिर आप क्या करोगे, यहाँ से जाते जाते 2 आपको रास्ते में मिल गए ना कि यार थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, यार मेरे बच्चे की मैडम तो सुनती नहीं, मैं तो दसी जानती सी उन्होंने, वो तो सुन के ही राजी नहीं है, बच्चे दी प्रॉब्लम की करनी. सी व्हाट टाइम यू चोज, राइट. तो हमें इन चीजों को माइंडफुली देखना है. हम चाहते हैं हमें टीचर सुने. सैटरडे टेक अपॉइंटमेंट विद द टीचर. हर सैटरडे आने की जरूरत नहीं है, बट टेक आउट दैट 15 मिनट्स. उस टाइम पे टीचर के पास बच्चे नहीं होंगे. अगर वो आपको 15 मिनट के लिए बुलाएंगे, एटलीस्ट सुनेंगे तो सही आपको. ये है पेरेंटिंग जिसके ऊपर हमें काम करना है. And we won't be giving them juices if the parents are sending, ma'am. Like if one child is drinking juice in the class and he is vomiting also, so teacher might refuse to give that juice also to the child. And they are kids, ma'am. And they are kids. मुझे लगता है एक के हाथ में जूस देके दूसरा कहेगा मैम मुझे भी चाहिए. यही बात है ना. So that could be given at home. आप healthy eating दो जो बच्चा manage कर सके, है ना. And कुछ parents की query ये आ रही है कि when the child is eating or when they are going for the dance room, हमें उनकी pictures चाहिए. Wherever, whenever it is required, we'll be clicking and sending it to you. But every day it won't be there. Yesterday we celebrated Green Earth Day. We sent you the pictures, है ना. और अगर फिर तो teachers photographers बन जाएंगे, they won't be teaching, they'll be clicking pictures and sending to you just for your satisfaction. कई बार I'm sure वो इतने excited होते हैं कि teachers automatically भेज भी देते हैं, है ना. अगर बच्चा सुबह रो के आया है आपसे, आप uncomfortable गए हो, we surely click the picture and send कि हाँ he settled now, है ना, आपकी उसके लिए. पर अगर आप बोलो कि कुछ भी हो रहा है और हमें वो साथ साथ अपडेट मिली जाएगी, we won't be able to do that. And do I add कि मैम इसमें separation anxiety सिर्फ बच्चे की नहीं है, यहाँ पे मम्मी पापा की है. And that पहली बार घर से निकले, that passes to the child. बहुत मुश्किल है अपने एक टुकड़े को अपने से अलग करके भेज देना. इजी नहीं है, राइट. ट्रस्ट मी, अभी भी आज भी हमें it gives us goosebumps, but they will never remain with us, right. हम ask Sukham ma'am, ask me, ask Anku ma'am sitting here, and if other teachers, हमारे बच्चे तो अभी बहुत दूर दूर बैठे हैं, so they will go in their own zones, right. लेकिन जितना टाइम वो आपके पास है उसमें आप उनके साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए. एक पेरेंट ने मैम पीपीटी मांगी है. I will surely be sharing it with you, and then we'll share the recordings also. We'll share the recording. And one parent has put in कि we want a parent for the whole family session for the whole family. वो मैम आज भी आपकी सारी फैमिली साथ में बैठ सकती थी. There's no limit to that. Anybody can join. स्कूल में जब बुलाएंगे ना वहाँ हम लिमिट करते हैं. जब स्कूल में बुलाते हैं वहाँ only 2 members हमें सिटिंग देखनी होती है. यहाँ हमारे पास जितने मर्जी जो हमारे MGN के फैमिली मेंबर्स हैं, we allow them to join. जो स्टूडेंट्स हैं. Anything else, Anku? I think so. We have. In case any queries, you can always, like ma'am said, post in the WhatsApp suggestion number. We'll share it again with you in the WhatsApp groups. And we should not be calling teachers during working hours. They will not pick up the phone. If it is an emergency, call at the reception. You have my number. You call me. We can look into the matter. And I have given you the timings during working hours. Just drop a message. Teacher will get back to you. Whatever you want. And a query regarding washroom, then yes, if a teacher cannot leave 30 students and take your child to the washroom, so we have to send them with the ayahs. But if the helper is not, if the child is adamant that I don't want to go to the washroom with the helper, then I myself have seen that the teachers themselves are taking them to the washroom. It's not that we'll allow the child to, do it in the classroom itself. We may not be showing, but they are supervised when they are walking down to washroom or to any activity room. And this is also their learning. अब तक even nursery knows कि washroom कहाँ पे है, music room कहाँ पे है, activity room कहाँ पे है. And they are managing on their own. We are there. Office से भी मैं देखती रहती हूँ कौन कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है. I think we can call it a day now. Yes. And Anku ma'am, there are a lot of suggestions, things written in the chat box. Please make a list of these things and share in the common group. Fast food not allowed, not to be sent in tiffin. Parents have those concerns, which is, this.
किसी ने लिखा fathers don't come, but you have to talk to each other, and then you have to make your father also to be equally responsible in the overall development of the child, right? There is one child, she was crying bitterly yesterday. Mama ने बोला आगे ही बैठना है. Though we are making them sit in rotation, please guide us and parents about this. I think definitely understood. स्कूल के कुछ रूल्स होंगे, स्कूल के कुछ आई नो कुछ क्राइटेरियाज हैं फॉर द क्लास, राइट? डू नॉट वरी, द टीचर नोज द बेस्ट. जो रो रहा होगा टीचर ने आपके कहे बिना ही उसको अपने पास बिठा लेना. अंडरस्टैंड दैट, ट्रस्ट द टीचर ऑन दैट, राइट? अगर हम एक ही बच्चे को आगे बिठाएंगे तो फिर बाकी के जो 20 बच्चे हैं वो रोना शुरू हो जाते हैं कि हमें भी वहीं बैठना है. सो द टीचर डज थिंग्स विदाउट मेकिंग इट वेरी obvious, right? So it is done on a rotation basis. Rotation, yes, it's done on rotation basis. Don't worry, अगर वो रोएंगे तो we are there to handle out. Ma'am, the meeting is about to end, so thank you. Thank you, parents. Thank you, ma'am. Thank you. And definitely we'll try to have we would love to have such sessions more, ma'am. Thank you, Sangeeta ma'am. Thank you, Sukha ma'am. Thank you, teachers. Thank you, parents. And next time add on a word compulsory for mother and father both to join. Yeah, that is how they want us. And in a joint family, grandparents also. Yes, grandparents also. Right. Thank you so much, everyone. Thank you for all the compliments. Thank you, ma'am, parents and teachers. Once again. Thank you. I've read all the compliments that you have shared. Happy reading, parents. Read a story to your child today on book day. Book day. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Where fathers have also joined. Thank you so much.